Hello my dear students. So as in chapter 3rd we are discussing about introduction to MS Access 2010. In chapter 3rd we have already discussed what is database, how to create a database, table, its components of a database, that is the tables, queries, forms and reports. We can also discuss earlier how to create a blank database and how to create a database using the predefined templates. Then we see different types of data types which we use in MS Access. Data types are the type of record which we save in our tables. Okay, different types of data types which we use in our tables are the text data type, number, date and time, auto number, memo, hyperlink. So these are all the data types which we use in our tables. But in chapter 4 we are going to discuss the components of a database, that is the queries, forms and reports. As you see in this figure, the queries are the records, are the method to retrieve or to draw the data from the records already in the table based on certain criteria. जब हम एक टेबल या एक से ज़्यादा टेबल से कोई भी डाटा रिट्रीव करते हैं या ड्रॉ करते हैं, विड्रॉ करते हैं, मतलब उसको इंफॉर्मेशन को हम आउटपुट लेते हैं, वी यूज दिस क्वेरीज. हम इन क्वेरीज का यूज करते हैं. सो वी गेट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ from tables with the help of these queries. So queries are those that truly make the work in a database. Query is used to filter the data according to a certain criteria or a specification. Its most common function is to recover a specific data of the tables. किसी भी टेबल से कोई स्पेसिफिक डेटा को अगर हमें रिट्रीव करना है, वी यूज द क्वेरीज. सो देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ क्वेरी. ओके, सो हाउ डू वी क्रिएट अ क्वेरी? देयर आर टू वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, using a query makes it easier to view, add and delete or change data in your Access database. Some other reasons for using queries: find specific quickly data by filtering or specific criteria, यानी कोई भी कंडीशन लगा करके हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं या स्पेसिफिकली हम किसी डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं क्विकली विद द हेल्प ऑफ क्वेरी. सेकेंड इज कैलकुलेट और समराइज डेटा. हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं और समराइज भी कर सकते हैं डेटा को. और ऑटोमेट डेटा मैनेजमेंट टास्क. हम जो डेटा का मैनेजमेंट है उसको बहुत ही फास्ट वे में, क्विक वे में कर सकते हैं, मीन्स उसे ऑटोमेटिक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेरी. एंड वी कैन ऑल्सो सेव आवर क्वेरी फॉर फ्यूचर रेफरेंस. और फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी हम अपने क्वेरी को सेव कर सकते हैं. सो देयर आर टू मेथड्स. दो मेथड्स हैं क्वेरी को जनरेट करने के, क्वेरी को क्रिएट करने के, विच इज गिवन इन योर बुक. फर्स्ट इज द क्वेरी विजार्ड एंड सेकेंड इज द क्वेरी डिजाइन. ओके, देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ क्वेरी. फर्स्ट इज द क्वेरी विजार्ड, second is the query design.
Okay, so let's see this table. All of you see this table. There is a table named class 8th. Okay, here the name of the fields are roll number, name, okay, address, father's name, mobile number. Okay, so these are the students record. These are the students record which we save in this table: roll number, name, address, father name and mobile number. So this is the table. So how to create a table using the query wizard? First of all, see, there are two ways to create a table. To create a query, so first way is by query wizard. Query wizard से कैसे हम जनरेट करेंगे कोई भी क्वेरी, वो हम देखते हैं. So with the query wizard you can select a group of records based on some rules to specify. For example, if you have a database, अगर डेटाबेस में कोई टेबल है या एक से ज्यादा टेबल है, यू कैन केयरफुली डिजाइन क्वेरी. हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेरी डिजाइन करेंगे टू कलेक्ट और डिस्प्ले जस्ट अ फ्यू रिकॉर्ड्स दैट सेटिस्फाई सम न्यूमेरिक और लॉजिकल वैल्यू. अगर हमें कोई लॉजिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग हम अपनी क्वेरी डिजाइन करेंगे, मीन्स किस टाइप का डेटा हमें चाहिए. तो एज यू सी इन दिस टेबल, there is a table of class 8 in which you save roll number, name, address, father name and mobile number. Then go to the create tab. Here you see this create tab. Go to the create tab, click on the query wizard. This is query wizard. Click on this query wizard. The query wizard dialog box appears. Select the simple query wizard. Here you see select simple query wizard and then click OK. Okay, click OK. Then select the fields by first highlighting the field from under the available fields heading section. यहाँ जो अवेलेबल फील्ड्स ऑलरेडी हमने दे रखे थे, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फादर्स नेम और मोबाइल नंबर, इसमें से पर्टिकुलर हम वो फील्ड्स सेलेक्ट कर लेंगे जिनसे हमें रिकॉर्ड्स लेना है. सपोज हमें रोल नंबर चाहिए तो हम क्लिक करेंगे इस बटन पे. वी गेट द रोल नंबर इन द सिलेक्टेड फील्ड सेक्शन. देन वी वांट एड्रेस, सो वी आल्सो सेलेक्ट दिस. देन वी वांट फादर्स नेम आल्सो. देन वी वांट फादर्स नेम and we want a roll number also, mobile number also. Then we want click on this button to get mobile number in the selected field, and we want name also, so we want name also in the selected field. Okay, so we selected all the available fields. Okay, बट सपोज वी वॉन्ट ओनली मोबाइल नंबर. अगर हमें केवल फादर का नेम और मोबाइल नंबर ही चाहिए, यानी कि हमें एड्रेस नहीं चाहिए, हमें केवल उसका फादर्स का नेम चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए और एड्रेस चाहिए, रोल नंबर नहीं चाहिए, तो उस रोल नंबर और नेम को हम अवेलेबल फील्ड में रहने देंगे. जो जो फील्ड हमें चाहिए वो हम सिलेक्टेड फील्ड में ले लेंगे. अब हमने 3 सिलेक्टेड फील्ड में ले रखा है, एड्रेस, फादर नेम और मोबाइल नंबर, और अवेलेबल फील्ड में रोल नंबर और नेम है. यानी कि जो जो फील्ड से डेटा हमें चाहिए वो फील्ड से हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे. ओके, सो एज यू सी, assign the name for the query and then click on finish button. अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
और इस क्वेरी के लिए हम कोई एक नेम दे देंगे, कोई टाइटल दे देंगे। तो हमने दे दिया क्लास 8th क्वेरी 1, हमने यहां पे नेम दे दिया क्लास 8th क्वेरी 1। ओके, देन ओपन द क्वेरी टू व्यू इंफॉर्मेशन। हम यहां सेलेक्ट कर लेंगे ओपन द क्वेरी टू व्यू इंफॉर्मेशन, और अगर हमें कोई फिर क्वेरी में मॉडिफिकेशन करना है देन वी चूज द मॉडिफाई द क्वेरी डिजाइन। ओके, अदरवाइज वी चूज ओपन द क्वेरी टू व्यू इंफॉर्मेशन, देन we click on the finish button. Okay, we click on the finish button and here you see we get the address, father's name and mobile number of all the students। यानी कि जो ये क्वेरी 1 है इसमें टेबल में तो ये सारी चीजें दी हुई हैं, रोल नंबर भी, नेम भी, एड्रेस भी, फादर नेम भी और मोबाइल नंबर भी। बट यहां जो नेविगेशन पैन में क्वेरी सेव हुई है, इस क्वेरी पे जब हम क्लिक करेंगे तो वी गेट ओनली द एड्रेस, फादर्स नेम एंड मोबाइल नंबर। केवल यहां पे 3 चीज ही शो हो रही हैं, एड्रेस, फादर्स नेम एंड मोबाइल नंबर ओनली, विच वी चूज इन द सेलेक्टेड फील्ड। जो हमने सेलेक्टेड फील्ड्स में चूज किया था वही केवल इस क्वेरी में शो हो रही है। Next method is how to design a query using the design view। अब डिजाइन व्यू से क्वेरी हम कैसे डिजाइन करेंगे वो हम देखेंगे। सो क्वेरी इज बेस्ड ऑन ए टेबल। क्वेरी जो है हमेशा ही टेबल पे बेस होती है। तो जैसे कि ये टेबल है क्लास 8th टेबल। टू क्रिएट अ क्वेरी यू नीड टू ओपन द टेबल। हमने टेबल ओपन कर ली। Our query on which you want going to base on your query is the query design view, and then use the options in the query design view to create your query। So if you want to design a query using the query design, अभी तक तो हम क्वेरी विजार्ड से देख रहे थे कि हम क्वेरी कैसे डिजाइन करते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि हम क्वेरी को डिजाइन से कैसे, क्वेरी डिजाइन से कैसे हम क्वेरी डिजाइन करेंगे। So how to create a query using the query design? So select the create tab। Similarly हम create tab में जाएंगे, then click on the query design in the queries group। queries group कहां पे है? We go to the query others। यहां पे इसमें 2007 में others ग्रुप में दिया हुआ है। तो others ग्रुप में हम क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करेंगे। वी क्लिक ऑन द क्वेरी डिजाइन। हियर यू सी द टेबल्स क्लास 8th के नाम से वो टेबल सेव है। ओके, देन क्लिक ऐड करेंगे टेबल को। हियर यू सी शो इन द टेबल बॉक्स यू विल सी द लिस्ट ऑफ इट्स फील्ड नेम्स। सारे फील्ड्स के नेम यहां पे शो हो रहे हैं जो हमारे टेबल्स में है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फादर्स नेम और मोबाइल नंबर। सेलेक्ट द फील्ड्स बाय डबल क्लिकिंग ऑन देयर नेम्स टू विच यू वांट टू अप्लाई द क्वेरी। अब क्वेरी में जो जो चीजें हमें चाहिए, जैसे कि हमें रोल नंबर चाहिए, हमने रोल नंबर पे क्लिक कर दिया। ओके, हमने रोल नंबर पे क्लिक कर दिया, हमने एड्रेस पे क्लिक कर दिया और फादर्स नेम पे, मोबाइल नंबर पे। ठीक है, नेम पे नहीं किया, केवल रोल नंबर, एड्रेस, फादर्स नेम और मोबाइल नंबर पे डबल क्लिक कर दिया। हमने वो फील्ड सिलेक्ट कर लिए जिनसे हमें डेटा रिट्रीव करना है, रिकॉर्ड रिट्रीव करना है, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो वी सेलेक्ट ओनली द रोल नंबर, एड्रेस, फादर्स नेम एंड मोबाइल नंबर। ओके, देन द सेलेक्टेड फील्ड्स विल अपीयर एट द टॉप ऑफ ईच कॉलम इन द क्वेरी डिजाइन ग्रिड। यहां क्वेरी डिजाइन ग्रिड पर हमें सेलेक्टेड फील्ड्स दिख रही हैं जो कि चेक बॉक्स पे टिक लगा हुआ है। ऑल ऑफ यू सी चेक बॉक्स पे टिक लगा हुआ है। तो जो जो हमने सेलेक्ट किया है
वो रोल नंबर, एड्रेस, फादर्स नेम और मोबाइल नंबर ये इस जगह शो हो रहा है. ओके, नाउ असाइन द क्राइटेरिया or condition into the appropriate cell of the query design grid. For example, if you want to extract the records where the father's name started with V, अगर हम कोई क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं कि सपोज हम कोई क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं कि फादर का नेम या रोल नंबर, सपोज रोल नंबर पे हम कोई क्राइटेरिया लगा देते हैं. क्राइटेरिया में हम लगा देते हैं कि ग्रेटर देन, सपोज हमने क्राइटेरिया लगा दिया कि ग्रेटर देन 3 का हमने क्राइटेरिया लगा दिया कि ग्रेटर देन 3 जिसका रोल नंबर है केवल वो नेम्स शो हो, उनके एड्रेसेस, उनके फादर्स नेम और उनके मोबाइल नंबर शो हो. ठीक है, नेम भी चलो ले लेते हैं, नेम पे भी हम डबल क्लिक कर लेते हैं. ठीक है, तो नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, और हमने रोल नंबर पे क्राइटेरिया लगा दिया कि ग्रेटर देन 3, यानी कि जिसका रोल नंबर ग्रेटर देन 3 है केवल वो डेटा शो होगा. ओके, अब ये हमारी क्वेरी रेडी है और हम फिर सेव बटन पे क्लिक करेंगे. सेव योर क्वेरी बाय क्लिकिंग ऑन द सेव आइकन विद अ सुटेबल नेम. हम इसे चाहे तो इसे सेव कर लेंगे फॉर फर्दर फ्यूचर यूज के लिए. देन वी रन दिस क्वेरी इन द रिजल्ट सेक्शन. रिजल्ट ग्रुप में जाएंगे, रन पे क्लिक करेंगे. ओके, हियर व्हेन यू रन द क्वेरी you get the roll number, name, mobile number, father's name and address of those students which is greater, whose roll number is greater than 3. जिसका रोल नंबर 3 से ज्यादा था वहां पे केवल उन स्टूडेंट्स का डेटा ही आया हमारे पास, यानी रोल नंबर 4 एंड रोल नंबर 5. ठीक है, केवल रोल नंबर 4 और रोल नंबर 5 का ही डेटा हमारे पास आया है, बाकी रोल नंबर 1, 2, 3 का डेटा हमारे पास नहीं आया है. सो वी गेट द डेटा थ्रू दिस क्वेरी ऑफ द स्टूडेंट्स विच हैव हुज रोल नंबर इज ग्रेटर देन 3. सो इन दिस वे यू कैन जस्ट रन द क्वेरी एंड क्रिएट द क्वेरी यूजिंग द क्वेरी विजार्ड एंड द क्वेरी डिजाइन फंक्शन. इन दोनों तरीकों से हम क्वेरी को डिजाइन कर सकते हैं और रिजल्ट देख सकते हैं किसी भी क्वेरी का. नेक्स्ट इज द फॉर्म्स. कैसे हम कोई फॉर्म्स क्रिएट करते हैं और रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं वो भी हम देखेंगे. तो फॉर्म क्या है वो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि फॉर्म्स क्या हैं. तो एज वी डिस्कस इन आवर presentation that the forms are the user friendly interface for entering and viewing data. forms के थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा को एंटर करते हैं और व्यू करते हैं. ओके, सो इट अलाउज यू टू ऐड एंड अपडेट डेटा वन रिकॉर्ड एट अ टाइम इन ए टेबल. अगर टेबल में कोई डाटा हमें अपडेट करना है, ऐड करना है, तो उसके लिए हम फॉर्म्स का यूज करते हैं. फॉर्म्स आर मेड अप ऑफ कंट्रोल सच एज टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन्स. फॉर्म्स में हम क्या क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स यूज करते हैं जिसमें हमें डेटा एंटर करना है, बटन्स यूज करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी यूज करते हैं. ओके, तो इस तरह के बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो कि हम यूज करते हैं अपने फॉर्म्स में. सो टू क्रिएट अ फॉर्म, MS Access provides 3 main views in which a form is displayed. तो 3 व्यूज हैं जिसके थ्रू हम फॉर्म्स डिस्प्ले कर सकते हैं. In real life, a form is a piece of paper
रियल लाइफ में हम क्या देखते हैं कि फॉर्म कैसा होता है, एक फॉर्म होता है जिसपे हम अपना फिलअप करते हैं। जैसे अगर हमें एडमिशन लेना है स्कूल में तो हम फॉर्म फिल करते हैं, तो उसी तरह से हम जैसे पीस ऑफ पेपर पे फॉर्म फिल करते हैं तो यहां पर भी हम उसी तरह से फॉर्म फिल करेंगे। तो एमएस एक्सेस हमें 3 मेन व्यूज प्रोवाइड करता है इन विच ए फॉर्म इज डिस्प्लेड। कैसे फॉर्म डिस्प्ले होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट व्यू इज द फॉर्म व्यू। पहला व्यू है फॉर्म व्यू, इट इज यूज्ड टू एंटर एंड एडिट डेटा। ओके, सेकेंड इज द लेआउट व्यू। सेकेंड व्यू है लेआउट व्यू एंड इट इज द ओनली व्यू दैट इज अवेलेबल फॉर डिजाइनिंग फॉर्म्स। फॉर्म्स को डिजाइन करने के लिए जो व्यू हम यूज करते हैं दैट इज द लेआउट व्यू। इट इज यूज्ड टू चेंज द लुक एंड फील ऑफ ए फॉर्म। किसी फॉर्म का लुक और फील अगर हमें चेंज करना है वी यूज द लेआउट व्यू। एंड लास्ट इज द डिजाइन व्यू और थर्ड है डिजाइन व्यू। इट गिव्स यू अ मोर डिटेल्ड व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ योर फॉर्म। जो फॉर्म का स्ट्रक्चर है उसका व्यू हमें देखने को मिलता है इन द डिजाइन व्यू। यू कैन सी द हेडर डिटेल्स एंड फूटर सेक्शंस ऑफ द फॉर्म। हेडर में क्या रहेगा, फूटर में क्या रहेगा, डिटेल में क्या रहेगा, वो सारा सब कुछ हम डिजाइन व्यू में देखते हैं। तो 3 व्यूज हैं फॉर्म्स के, फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू एंड डिजाइन व्यू। सो यू कैन क्रिएट अ फॉर्म इन वेरियस वेज। अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज हैं फॉर्म्स क्रिएट करने के, फर्स्ट इज द फॉर्म कमांड, सेकेंड इज द फॉर्म विजार्ड एंड थर्ड इज द स्प्लिट फॉर्म। So first we are going to see creating a new form using form command. Form command से कैसे हम फॉर्म क्रिएट करेंगे वो देखते हैं। The basic form command is the one that allows the person entering the data to see just one record at a time. कभी भी जो हम डेटा क्रिएट करते हैं तो डेटा जब सेव करते हैं, किसी भी इंटर करते हैं किसी भी टेबल में, तो हम क्या करते हैं, हम टेबल ओपन करते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और उसमें सीधे सीधे हम डेटा सेव कर देते हैं। इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड ऑल द फील्ड्स इन द सोर्स टेबल फॉर यू एंड यू कैन मॉडिफाई द लेआउट ऑफ द बेसिक फॉर्म टू हाइड फील्ड्स और ऐड कंट्रोल्स। तो वहां पे हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ मॉडिफाई करना है, यानी पहले से भी अगर कोई डाटा दिया हुआ है उसे मॉडिफाई करना है या फील्ड का नाम चेंज करना है, तो वो भी हम लेआउट में कर देते हैं। ठीक है, और डिफरेंट फील्ड्स को हम अगर चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, उसे हाइड भी कर सकते हैं। ओके, सो स्टेप 1 इज ऑल ऑफ यू सी दिस टेबल, ऑल ऑफ यू सी दिस इज टेबल क्लास 8th टेबल। अभी जो हम जैसे क्वेरी डिजाइन कर रहे थे उसी तरह से अब हम फॉर्म डिजाइन करेंगे। सो इन दिस टेबल सेलेक्ट द टेबल यू विश टू यूज एज अ सोर्स टेबल। हमने इसी टेबल को सोर्स टेबल की तरह यूज किया है। क्लिक ऑन द क्रिएट टैब, यहां भी हम क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन दिस क्रिएट टैब, क्रिएट टैब पे हमने क्लिक किया एंड गो टू द फॉर्म्स ग्रुप। ये फॉर्म्स ग्रुप है जो हमें दिख रहा है। क्लिक ऑन द फॉर्म, हमने फॉर्म पे क्लिक कर दिया। क्लिक ऑन दिस फॉर्म, ये हमने फॉर्म पे क्लिक कर दिया। ये क्लास 8th और ये फॉर्म खुल गया। अब न्यू फॉर्म ओपन्स इन लेआउट व्यू, एक फॉर्म ओपन हो गया। टू एडिट और एंटर डेटा इन द फॉर्म क्लिक ऑन द होम टैब। अब होम टैब पे क्लिक करते हैं। ओके, और देन ऑन व्यू, व्यू पे क्लिक करते हैं। व्यू पे क्लिक करते हैं, देन नाउ क्लिक ऑन द फॉर्म व्यू और फॉर्म व्यू पे क्लिक करते हैं। ओके, ये हमने प्रोसीजर फॉलो किया। फर्स्ट क्लिक ऑन द क्रिएट टैब, गो टू द फॉर्म एंड
then click on the home tab, then on the view, and on the view then click on the form view, and you can now change the records in the form by moving through them from the navigation bar. navigation bar में जाकर के भी हम यहां से चेंज कर सकते हैं फॉर्म व्यू। यहां पर हम चेंज कर सकते हैं रिकॉर्ड्स, नेविगेशन में भी जाके कर सकते हैं। क्लिक ऑन द सेव बटन, और यहां से हम अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर अगर सपोज हमें कोई डेटा सेव करना है, रोल नंबर हमें 5 डालना है, 5 डाल दिया। नेम हमें चेंज करना है तो हमने यहां क्लिक किया और यहां से हमने सपोज नेम चेंज कर दिया। नेम चेंज कर दिया, और इसी तरह हमने एड्रेस भी यहां पे चेंज कर दिया। ठीक है, फादर्स नेम भी चेंज कर दिया, और यहां से हमने मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया। ओके, अब ये डेटा जो है ये इसे हम सेव कर लेते हैं। यहां से हमने सेव कर दिया, और ये डेटा फॉर्म का नेम अब पूछ रहा है कि आपको इस फॉर्म का नेम क्या कुछ चेंज करना है, तो हमें फॉर्म का नेम 8 ही रखना है। तो सपोज हमने फॉर्म का नेम 8 करके और इसे सेव कर दिया। ओके, ये सेव हो गया 8 से, क्योंकि पहले भी सेव हो चुका है तो इसलिए इसे हम 8 ए कर देते हैं। ओके, और इसे हमने सेव कर दिया, तो ये डेटा सेव हो गया। ओके, क्लास 8 ए। ओके, ये फॉर्म सेव हो गया। अब हम देखेंगे कि क्रिएटिंग अ फॉर्म यूजिंग फॉर्म विजार्ड, फॉर्म विजार्ड से कैसे हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो ऑल ऑफ यू सी, दिस इज द टेबल, क्लास 8 टेबल। क्लिक ऑन द क्रिएट टैब, क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे। गो टू द फॉर्म्स ग्रुप, फॉर्म्स ग्रुप में जाएंगे एंड क्लिक ऑन द फॉर्म विजार्ड, फॉर्म विजार्ड पे क्लिक करेंगे। ओके, फॉर्म डिजाइन, फॉर्म डिजाइन पे क्लिक करेंगे। फॉर्म विजार्ड, आई थिंक इन 2007 फॉर्म wizard is not given. Okay, form wizard is not given. Yes, form wizard, form wizard दिया हुआ है। फॉर्म विजार्ड एक्चुअली कुछ फंक्शंस डिफरेंट हैं 2010 में, और 2007 में कुछ फंक्शंस डिफरेंट हैं। सो वी गो टू द फॉर्म, first we go to the create tab, then click on the forms group, then on the more forms we go to the form wizard. All of you see the fields which we save in our table. Okay, you see the table, roll number, name, address, father's name and mobile number. सेलेक्ट द फील्ड, यहां पे भी हम उसी तरह रोल नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, नेम को सिलेक्ट कर लेंगे और फादर्स एड्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे। 3 चीजें हमने सिलेक्ट कर ली, रोल नंबर, नेम और एड्रेस। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक किया। व्हाट लेआउट वुड यू वांट टू लाइक योर फॉर्म, किस तरह का लेआउट हम चाहते हैं, तो वी वांट द कॉलमर लेआउट, कॉलमर लेआउट हम चाहते हैं। वी क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। ओके, वी क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, देन वी क्लिक ऑन द फिनिश
and here you see ऑलरेडी एक फॉर्म क्रिएट हो गया है, क्लास 9th के नेम से, क्योंकि यहां पर हमने नेम चेंज नहीं किया था. सो एक फॉर्म क्रिएट हो गया है जिसमें रोल नंबर, नेम और एड्रेस शो हो रहा है. ओके, क्लास 9th के नेम से. And the third method, now we are going to see the third method, that is creating a form using the split form. split form के थ्रू कैसे हम फॉर्म क्रिएट करेंगे अब वो देखते हैं. To create a form using the split form. So step 1, click on the more forms in the forms group. Forms group में जाएंगे, create पे जाएंगे. We click on the first, we click on the table. सबसे पहले हम टेबल सेलेक्ट करेंगे. देन वी गो टू द क्रिएट, देन वी गो टू द मोर फॉर्म्स. ओके, मोर फॉर्म्स पे जाएंगे. मोर फॉर्म्स पे जाने के बाद हम क्रिएट टैब पे जाएंगे एंड वी चूज द स्प्लिट ऑप्शन. स्प्लिट फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे. ओके, द आउटपुट विल अपीयर लाइक दिस. जैसे हम स्प्लिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आउटपुट कुछ इस तरह शो होगा. नीचे टेबल शो होगी और ऊपर ये फॉर्म शो होगा. ओके, देन दिस फॉर्म इज डिस्प्लेड इन द अपर हाफ ऑफ द विंडो. अपर हाफ ऑफ द विंडो में हमें ये फॉर्म शो होगा एंड द डेटाबेस इज डिस्प्लेड इन द लोअर हाफ. और डेटाबेस में लोअर हाफ में हमें डेटाबेस शो होगा, मीन्स वो टेबल शो होगी. You can click on any record which you want to display in the form. केवल हमें उस रिकॉर्ड पे क्लिक करना है और वो डेटा चेंज होता जाएगा हमारे फॉर्म में. एज यू सी, जैसे जैसे हम नेम पे चेंज करते जा रहे हैं, क्लिक करते जा रहे हैं, तो ये डेटा भी फॉर्म पे चेंज होता जा रहा है. ऑल ऑफ यू सी. ओके, देन you can click on any record which you want to display in the form. The two views are separated by a bar. दोनों views एक बार से separated हैं, which you use to resize the heights of the two views. Both parts of the window will show the same field and the same record at a time. Means ये जो बार है इसको हम ऊपर या नीचे कर सकते हैं. अगर बड़ा फॉर्म है तो इसको हम ऊपर या नीचे कर सकते हैं. तो इसके थ्रू हम अपने फॉर्म को के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल एंड द 3 ways which you use to create a form. Split, first is the form command, second is the form wizard, third is the split form. So there are only 3 ways to create a form. Form command, first is the form command, second is the form wizard, and third is the split form. Okay, and at last we are going to discuss about the reports. Reports कैसे हम जनरेट करते हैं. A report is an effective way to present and summarize the data using an attractive layout. अब अगर हमें कोई अट्रैक्टिव लेआउट में हमें रिपोर्ट चाहिए एक समराइज फॉर्म में, या फिर प्रिंट आउट निकालना है हमें अपने डेटा का, तो हमें एक समराइज फॉर्म में और जिसका एक तरीके से प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में हमें एक फॉर्मेट चाहिए, प्रिंटेबल फॉर्मेट चाहिए, तो देन वी यूज द रिपोर्ट. उसके लिए हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं. सो MS Access ऑफर्स टूल्स दैट अलाउ यू टू क्रिएट एंड फॉर्मेट अ रिपोर्ट. रिपोर्ट कैसे हम जनरेट करेंगे वो हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द टेबल. टेबल पे हम गए, दिस इज आवर टेबल. क्लिक ऑन द क्रिएट टैब. क्रिएट टैब में जाएंगे, देन गो टू द रिपोर्ट ग्रुप. ये रिपोर्ट्स ग्रुप है. क्लिक ऑन द रिपोर्ट. रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे. ओके, the report will automatically be generated and will include every field in the table in order of their appearance in the table. तो जैसा कि यहां पे दिख रहा है सारी फील्ड्स दिख रही हैं रिपोर्ट में. क्लास 8th टेबल का नेम, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फादर्स नेम एंड मोबाइल नंबर. ओके, सो दिस इज ऑल यू सी इन दिस
रिपोर्ट में ये पूरी की पूरी ये शो हो रही है, ओके, सारी फील्ड्स शो हो रही हैं और सारा डेटा भी शो हो रहा है. देन क्रिएटिंग अ रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट विजार्ड. ओके, सो दिस इज द डिटेल सेक्शन, ये डिटेल सेक्शन है. अब हम देखेंगे कि कैसे हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं यूजिंग द रिपोर्ट विजार्ड. ये तो हमने क्रिएट किया था केवल रिपोर्ट कमांड से. नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट विजार्ड. रिपोर्ट विजार्ड के थ्रू कैसे क्रिएट करेंगे? वी क्लिक ऑन द टेबल एंड गो टू द क्रिएट टैब, क्लिक ऑन द रिपोर्ट विजार्ड. दिस इज रिपोर्ट विजार्ड. देन सेलेक्ट द फील्ड. सपोज हमें फील्ड सेलेक्ट करनी है. देन सेलेक्ट द फील्ड, रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड फादर्स नेम. ये 4 फील्ड्स हमने सेलेक्ट कर ली. गो टू द क्रिएट टैब, देन क्लिक ऑन द रिपोर्ट विजार्ड, देन सेलेक्ट द फील्ड्स. सेलेक्ट कर ली 4 फील्ड्स हमने, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फादर्स नेम. क्लिक नेक्स्ट बटन. ओके, डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल्स? क्या कोई ग्रुपिंग लेवल्स में आपको ऐड करना, ये पूछ रहा है. ग्रुपिंग लेवल्स में कुछ ऐड तो नहीं करना है, तो हमें ग्रुपिंग लेवल्स पे कुछ ऐड नहीं करना है. देन वी गो टू द नेक्स्ट. देन यू कैन सॉर्ट रिकॉर्ड्स. ये कह रहा है कि आप सॉर्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को, तो हम यहां पे नन कर देंगे. एंड देन क्लिक नेक्स्ट. ओके, हम रिपोर्ट टैबुलर फॉर्म में चाहते हैं कि लेआउट किस फॉर्म में चाहते हैं, ये पूछ रहा है. तो हम टैबुलर फॉर्म में चाहते हैं लेआउट, और ओरिएंटेशन कैसा हो? पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन हो. ओके, जैसे प्रिंट आउट हम निकालते हैं उसी तरह. देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट. देन नेक्स्ट. एंड इफ यू वांट टू टाइटल, अगर कोई टाइटल देना चाहते हैं तो हम यहां पे टाइटल दे देते हैं 8th, सपोज 8th D. हमने टाइटल दे दिया 8th D, क्लास 8th D. एंड प्रीव्यू द रिपोर्ट. यहां से हम प्रीव्यू करेंगे रिपोर्ट को. वी क्लिक द फिनिश. ओके, सो दिस इज द रिपोर्ट क्लास 8th D. ओके, क्लास 8th D. So all of you see, this is, we create a report. Here is the name, roll number, name, address, फादर्स नेम. जो जो फील्ड्स हमने सेलेक्ट की थी वो फील्ड्स एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में आ गई है. यहां से हम जाएं तो सीधे यहां से प्रिंट कमांड पे क्लिक करके और इस रिपोर्ट को हम प्रिंट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टू क्रिएट अ फॉर्म, टू जनरेट अ क्वेरी एंड टू क्रिएट अ रिपोर्ट in MS Access using the different types of wizards and different types of commands and different types of tools given in MS Access. And I think this video help you to understand the chapter regarding the MS Access or any topic regarding reports, queries and forms. And if you have any doubt regarding this chapter or any topic related to the queries, forms and reports, you can see in this video. You can see the video carefully and you can also ask me on my WhatsApp number. So thanks for watching and have a nice day.